Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. We are talking about session number 4 on this comprehensive revision for CLAT 2021. This is second session on reading comprehension. My dear students, by following reading comprehension module, some around 8 to 10 hour of module, I believe that you will become master at solving these RC questions. Okay, in the first session, we discussed about what is RC, what are the varieties of the methods we have to adopt, active reading versus passive reading. We understood varieties of the levels of meanings of the words while you are reading, when to focus on what kind of important information on fictional passages, and what is a method we should have for non-fictional passages. Yes or no? This is what we learned in this session number 1. If you have missed that session, I will strongly urge you to go through that session, because all these sessions are connected. With developing this broader ideas, I'm sure when you try and read your passages, you will have a clear focus what to look for in the passages. Okay, that's very crucial. So दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा focus है second session में trying to understand about logic. Logic plays a very crucial role. I'm sure you all understand that we have been focusing a lot on integrated approach, like vocab plays a very important role, grammar plays a very important role, and logic will play a very important role. The intelligent people, the intelligent students, or the students who are, you can say, getting into the admission into NLUs, top 1000 students in the country, okay, they will fall under, you can say, this range. The people who have good command over vocab, people who have good command over grammar, and people who have good command over logic. I told you that make sure that every day you learn 30 new words. Yes or no? At the same time, I focused on understanding grammar. Today, I'm trying to mix two things, logic and grammar. Okay, this is what we are trying to understand. This is a game changer session दोस्तों, ठीक है? क्यों? Because आपका, you can say, जो RC के पैसेजेस है वहां पे आपकी जो गलतियां होती है, the kind of mistakes you commit, ठीक है, they are primarily due to logic, primarily due to, you can say, not able to understand certain sentences or not able to understand the options or misinterpreting the options. ठीक है, those kind of problems you are facing. So by doing the today's sessions, you will be in a position to understand कि कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा. ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, as I mentioned that I am going to talk about methods of solving central idea. I'm going to help you out with respect to methods of solving central idea based passages. ठीक है, I will help you out with summaries. ठीक है, tone of the passage उसके ऊपर हम बात करेंगे, and some important literary devices which will be very useful in the fictional passages. This will be very crucial. Okay, so let's start to talk about this. As we talked about that it is an integrated approach we have to talk about. Today I'm going to focus on logic and reasoning. Sometimes I will focus on the grammar as well. So दोस्तों, when I talk about logic, I have to understand that there is something like assumption, fact, inference, opinion. You should know the difference. You should also know the difference between a deductive reasoning and inductive reasoning. Okay, so from there you can say, you know, the, let's say, author is giving certain argument in a deductive reasoning manner. ठीक है, do you really accept it or not? Okay, how do you accept? ठीक है, how can you find out some kind of weaknesses in that argument? Okay, हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं लॉजिक. दोस्तों, लॉजिक के अंदर there are certain terms and terminologies. For example, a term called fact. Okay, you must know when the author is putting facts and author is putting opinion. Yes or no? There is a difference between opinion and the fact. Facts are verifiable, facts are discoverable, something which we have heard, something which we have read, something which we have seen, that is called fact. Okay, ठीक है, that is called fact. While opinion is approval or disapproval. Okay, approval or disapproval of, you can say, object, event or a person.
ठीक है भैया से जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर से ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया. ओके नाउ पीपल कंडेम इट, पीपल डिसअप्रूव सच काइंड ऑफ इवेंट. ओके ठीक है दैट इज ओपिनियन. बराबर है, दैट इज प्योरली एन ओपिनियन. Okay, people say this is bad idea, this is wrong thing. Okay, there may be some people who may approve, so that's a disapproval. But जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर इस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ is a fact. Okay, something which is verifiable, something which is discoverable. Okay, that is how the fact and opinion are. While when I talk about inference, ठीक है, inference का मतलब होता है we try to understand, you can say conclusion, or we derive a conclusion from certain logical statements provided. Okay, assumptions are unstated premises. ठीक है, unstated premises. हम देखेंगे इसको आगे जाकर, पर logic plays a very important role. So दोस्तों, whenever we talk about दोस्तों आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करने वाले इन चीजों के बारे में. पहला पॉइंट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अलर्टनेस टू लॉजिक. ठीक है, आज के सेशन के बेसिस के ऊपर आप लॉजिक के बारे में सोचना चालू करेंगे. आरसी के अंदर ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना चालू करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, ठीक है, इट इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ यू कैन से एनी लैंग्वेज. ओके, सो इफ you know logic, you know language. If you know language, you know logic. That is how the idea is. Okay, you will develop important understanding about importance of language in logic. Like, ठीक है, I will help you out to identify logical inconsistency in the sentence. Okay, thereby in the option you will be in a position to do that. ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अंदर आपको ट्रैप दिए जाते हैं. ठीक है, सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि हमें लगे कि ये सेंटेंस तो सही है, पर लॉजिकली देयर आर लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन इट, ग्रामेटिकली देयर आर सम एरर्स इन इट. ठीक है, एंड देयरबाय द मीनिंग चेंजेस. ओके, ठीक है, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, बट इट इज ग्रामर इज यूज्ड इन अ वे दैट देयर इज सम लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी इज डिराइव्ड. सो वी शुड नो, we should be very clear about it, because in the option these are the traps. These traps will stop us, these traps will put us into a kind of, you can say, situation wherein we will not go to the top 1000 rank. Okay, similarly you can say there are certain sentences generally in the legal or in logical or in RC, because you are going and appearing for, you can say, this law related entrance exam. In law generally you get sentences wherein there are double negatives, ठीक है, or more than two negatives are provided. How to interpret those, ठीक है, that is what we are going to learn. Okay, and then we will apply the importance of logic की condition जिस तरीके से देखे रखी होती है, उन conditions के ऊपर क्या ध्यान देना है. if के बीच, इफ और ओनली इफ के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे. चलिए, ग्रेट दोस्तों. सो व्हेनेवर वी रीड आरसी, आवर फोकस इज नॉट ऑन द ग्रामर व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस. वी टेंड टू अप्लाई आवर इंट्यूटिव नॉलेज टू अराइव एट अ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, हम मानते हैं कि ऑथर शायद ये बोलना चाहता होगा. ठीक है, पर दोस्तों ये अगर पैराग्राफ में देखे रखा हुआ है, आप वहां पे आपका इंट्यूशन अप्लाई करते हो, वहां पे 2+2 ऐड करके आप कुछ बताने की कोशिश करते हो, कुछ कंक्लूड करते हो, वहां तक बात बराबर है. पर अगर मानो ऑप्शन के अंदर ऑथर ने जानबूझ के, दैट इज एग्जामिनर ने जानबूझ के ऑप्शन लॉजिकली इनकंसिस्टेंट वाले दिए हैं, आप क्या करोगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सामने सेंटेंस, है ना, जहां पे लॉजिकल एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसी आती है. ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा. पहला सेंटेंस है, इफ बेबी डिसलाइक्स फ्रेश मिल्क ट्राई बॉइलिंग इट. नाउ ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है. ट्राई बॉइलिंग इट, किसको बॉइल करे, वेदर इट इज मिल्क और बेबी, दैट इज अनक्लियर. यस और नो. ठीक है, बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी है, एम्बिग्यूटी क्लियर डेवलप होती है कि बेबी को बॉईल करे या मिल्क को. दोनों के लिए ये प्रोनाउन यूज हो सकता है. आप और मैं इंट्यूशन के द्वारा बोल सकते हैं कि बेबी के लिए तो थोड़ी बोला होगा, मिल्क के लिए बोला होगा. ठीक है, आप और मैं ये बात समझ पाते हैं. यस और नो. पर इसी चीज को अगर कॉम्प्लेक्स वे में एग्जाम में दिया गया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट्स ट्राई आउट टू नंबर 2. प्लीज
राइट योर आइडियाज अबाउट प्लांटिंग, ठीक है, दिस इज नॉट प्लानिंग, प्लांटिंग सीडलिंग्स ऑन अ पोस्ट कार्ड, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से ऑप्शन में दिया, ठीक है, अब हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या, हमें लगा सही बात है पर गलत है। क्या बोला, राइट योर आइडियाज अबाउट प्लांटिंग सीडलिंग्स ऑन अ पोस्ट कार्ड, ठीक है, यू राइट योर आइडियाज ऑन पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, राइट योर आइडियाज अबाउट प्लांटिंग सीडलिंग्स, ठीक है, ऑन पोस्ट कार्ड, मतलब आप किस बारे में आइडिया लिखोगे, सीडलिंग्स को पोस्ट कार्ड के ऊपर किस तरीके से प्लांट किया जाए। ऑप्शन इस तरीके से कर दिया गया होगा, बड़ी बर्बादी होगी। यस और नो, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नंबर 3, द लिटिल बॉय वॉक्ड एमिएबली टुवर्ड्स द मैन इंटेंडिंग टू किडनैप हिम, है ना भैया, जो लिटिल बॉय है, ही वॉक्ड एमिएबली टुवर्ड्स द मैन, ठीक है, इंटेंडिंग। नाउ दिस इंटेंडिंग refers to the subject of the sentence. Subject कौन है, the boy. The boy wanted to kidnap the man? No, the man was kidnapping the boy. Obvious है ना, intuition के द्वारा हमें ये पता है। तो यहाँ पे होगा the little boy who walked amiably, so the little boy walked amiably towards the man who was intending. This is how the idea would be. Yes or no? All the ships were unloaded at the Liverpool and sent by the train to Manchester. क्या भेजा गया मैनचेस्टर के द्वारा, ठीक है, शिप्स नहीं भैया, जो कार्गो, द अनलोडेड पार्ट, द गुड्स वर सेंट। यहाँ पे गुड्स लिखा नहीं है तो वहां से इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन यू रीड योर ऑप्शंस यू शुड हैव एन आई फॉर डिटेल, ठीक है, दिस इज आई फॉर अ डिटेल वाले लोगों के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव फ्यू मोर, ठीक है, रैप्ड इन अ टीन फॉइल, ठीक है। अब आप देखिए ग्रामर का मुद्दा, रैप्ड इन अ टीन फॉइल ही चीयरफुली मंच्ड हिज सैंडविच। रैप्ड इन अ टीन फॉइल इज अ मॉडिफायर। दोस्तों, द रूल फॉर मॉडिफायर इज, जिस चीज को वो मॉडिफाई करता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज को वो मॉडिफाई करता है उसके नजदीक आना चाहिए। रैप्ड इन अ टीन फॉइल, व्हाट इज रैप्ड इन अ टीन फॉइल? सैंडविच, नॉट द पर्सन। रैप्ड इन अ टीन फॉइल, सैंडविच वाज मंच्ड चीयरफुली बाय हिम, ऐसा बोल सकते हैं। यस और नो? और ही चीयरफुली मंच्ड हिज सैंडविच व्हिच वाज रैप्ड इन अ टीन फॉइल। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको आरसी में, ठीक है, कभी ग्रामर के सेंटेंस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया और आपको करेक्ट करने का बोला, मॉडिफायर का रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला था ग्रामर के बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा ध्यान क्या रखोगे आप, ठीक है, आप ध्यान रखोगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रोनाउन, यस और नो, प्रेपोजिशंस के बारे में मैंने बात करी थी आपको, ठीक है, टेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। एक और मुद्दा उसमें ऐड कर लीजिए दोस्तों, मॉडिफायर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड रूल आने चाहिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज रूल्स इन वन ऑफ द वी कैन से फ्यूचर क्लास। I understand your misgivings and I am going to proceed with the experiments regardless. ठीक है, I understand your misgivings and, ठीक है, conjunction कौन सा यूज होना चाहिए दोस्तों, ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट आइडिया देगा। When you are reading RC and when you have questions on grammar, ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे ये चेक करते हैं दैट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल कंसिस्टेंसी इन द सेंटेंस एंड कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज अ मिस्टेक। द मिस्टेक हियर इज ऑफ एंड। आई अंडरस्टैंड योर मिसगिविंग्स बट, क्या आना चाहिए, बट, यस और नो, ठीक है। सो दोस्तों, ये जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस क्लैट ने बनाए हैं उसमें आपको इस तरीके की सोच चाहिए होगी, ठीक है। व्हेन यू आर रीडिंग इट you can identify the grammar में logical ambiguity कैसे create हो रही है, logical inconsistency कैसे create हो रही है। I hope it is very clear to you। दोस्तों, इस तरीके से जब आप सीखते हैं, ठीक है, तो आपकी नजर बहुत अच्छी होती है when you are doing RC, ठीक है। when you know sentence में logical ambiguity होती है, inconsistency होती है, so when you are reading you are keeping those kind of thoughts in mind, okay। सो दोस्तों, मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको सीखने में मजा आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू एटलीस्ट 10-15 ऑफ योर फ्रेंड्स टू जॉइन प्रो टैलेंट। दिस इज वेरी क्रूशियल, ओके, ग्रेट। नंबर 7, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी
into the unrest last year. ठीक है, once again there is inconsistency, grammatical inconsistency here. The government ordered inquiry last year और unrest happened last year. क्या बात है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यस और नो, ग्रेट. सो इंक्वायरी लास्ट ईयर के बारे में बात थी या अनरेस्ट लास्ट ईयर हुआ था उसके बारे में बात थी, ये पता नहीं है. ही डिफ्रॉडेड हिज एम्प्लॉयर glaringly, however they never found out. He defrauded employer glaringly. glaringly मतलब ओपनली, खुलेआम, तो उनको तो पता चल जाना चाहिए, पर इन्होंने बोला उनको नहीं पता चला. नहीं पता चला तो सो नहीं आ सकता. ये सुनो, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आना चाहिए ना. ठीक है, सो कंजंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. परहैप्स the sentence has a different ironic interpretation. ठीक है, so when you say the sentence has ironic interpretation, so ironic different interpretation, ये चलेगा. there is nothing like different irony. okay, irony अपने आप में अलग चीज है. yes or no, different word can be used for interpretation. ठीक है, so कौन सा adjective कहां पे यूज हुआ, that way that may define your understanding of that passage. okay, great. तो ये हो गया पहला मुद्दा, ग्रामर बेस्ड पार्ट. लॉजिक यहां पे भी लगता है. ठीक है, कहां पे लगेगा, व्हेन यू आर रीडिंग पैसेज, ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए या ऑप्शन पढ़ते हो और ऑप्शन में इन्होंने ग्रामेटिकली एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी तो आपका आंसर होगा नहीं वो. सिंपल है, वेरी गुड. नंबर 1. नंबर 2, नाउ व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज and or the options are provided or some sentences are provided where negative words are used. ठीक है, how do you apply those negative word? For example, I am not taking tea. मैं चाय नहीं पीता. okay, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है. ठीक है, but I don't mind, you can say not taking tea. I don't mind not taking tea. ठीक है, सो भैया मैं इस बात को माइंड नहीं करता हूं कि जो चाय नहीं पीता है. समझ में आया, मतलब चाय पीना इज ओके विथ मी. ठीक है, इज दैट कंफर्टेबल. डबल नेगेटिव, चलिए ट्राई करते हैं. यहां पे देखिए, आई हार्डली न्यू समवन एट द मीटिंग. ग्रामर अप्लाई करेंगे. आई हार्डली न्यू समवन कभी नहीं चलेगा. नेगेटिव सेंटेंस में समवन आता नहीं है. क्या आएगा, आई हार्डली न्यू एनीवन. व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, whenever you have this negative word hardly, ठीक है, you can't use someone, you always use anyone. ठीक है, very important part. hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, इस तरीके से अगर सेंटेंस यूज हो रहा है तो आपको वहां पे anyone यूज करना है. चलिए ग्रेट, अब देखते हैं डबल नेगेटिव के बारे में. ठीक है, no judge but the most stony hearted could deny gymnast anything but the full marks. ठीक है, सो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी जज, ठीक है, बट द मोस्ट स्टोनी हार्टेड जज. नो जज बट दिस गाय, कोई भी जज नहीं, सिर्फ ये जज इस तरीके से काम करेगा. यस और नो, सो दैट मींस इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ओनली स्टोनी हार्टेड जज कुड हैव गिवन जिम्नास्ट लेस देन फुल मार्क्स. यस और नो, समझ में आ रहा है. नो जज बट द मोस्ट स्टोनी हार्टेड जज, कोई भी जज ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोनी हार्टेड जज करेगा. क्या करेगा, दे कुड डिनाई जिम्नास्ट एनीथिंग बट फुल मार्क्स. दे वुड डिनाई देम फुल मार्क्स. ठीक है, दे वुड डिनाई देम फुल मार्क्स. सो ओनली स्टोनी हार्टेड जज कुड हैव गिवन जिम्नास्ट लेस देन फुल मार्क्स. कम मार्क्स देने वाला बंदा कौन होगा, ओनली स्टोनी हार्टेड. समझ में आ रहा है दोस्तों. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, नो हेड इंजरी इज टू ट्रिवियल टू इग्नोर. आप देखिए नेगेटिव क्या हुआ, नो हेड इंजरी इज टू ट्रिवियल टू इग्नोर. ट्रिवियल चीज होना मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है. यस नो, कोई भी हेड इंजरी इतनी ट्रिवियल नहीं होती है जिसको इग्नोर किया जाए. मतलब हर हेड इंजरी को ध्यान से देखना है. यस नो, इज दैट वेरी क्लियर. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, नो हेड इंजरी इज टू ट्रिवियल टू ट्रीट. यस नो, उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, कोई भी हेड इंजरी इतनी ट्रिवियल नहीं होती है जिसको आप ट्रीट ना करें. यस नो, ठीक है, नो हेड इंजरी इज ट्रिवियल इनफ टू इग्नोर. ठीक है, और नो हेड इंजरी हाउएवर ट्रिवियल शुड बी इग्नोर्ड. ठीक है, और ऑल हेड इंजरी हाउएवर ट्रिवियल शुड बी ट्रीटेड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल head injury however trivial should be treated. This is the right answer. Yes or no, ये right है. No head injury is too trivial to ignore.
नॉट टू ट्रीट, ठीक है, मतलब हम क्या बोलते हैं, कोई भी हेड इंजरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नो हेड इंजरी इज ट्रिवियल इनफ टू इग्नोर. नो हेड इंजरी इज ट्रिवियल इनफ टू इग्नोर. बिल्कुल सही बात है. कोई भी हेड इंजरी इज, यू कैन से, सॉरी, हाँ, नो हेड इंजरी इज ट्रिवियल इनफ. कोई भी हेड इंजरी इतनी ट्रिवियल नहीं होती है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं. यस और नो, ठीक है. नो हेड इंजरी हाउएवर ट्रिवियल शुड बी इग्नोर्ड. ठीक है ना भैया, ठीक है. मतलब क्या हुआ, अगर वो ट्रिवियल भी हुई तो कोई भी हेड इंजरी को हम यू कैन से इग्नोर नहीं कर सकते. नो हेड इंजरी शुड बी इग्नोर्ड. बिल्कुल राइट इंटरप्रिटेशन है. यस और नो, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड. अगला देखते हैं, ठीक है ना. डबल नेगेटिव्स का एम्फेसिस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, कुछ कुछ सेंटेंसेस है ना, आपके इंटरप्रिटेशन के लिए, आप इसका मीनिंग क्या समझते हैं उसके लिए. अगर आपको समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. आई कैन नॉट हेल्प बट एडमायर हर. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प बट एडमायर हर. नॉट और बट नेगेटिव है. आई एडमायर हर. दैट इज हाउ द आइडिया इज. नंबर 2, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही डिड नॉट पे मी बैक. ठीक है, इन फैक्ट if he pays me back I will be surprised. Yes or no? If he pays me back I will be surprised. Yes or no? Number 3, I can't deny that I might not change my mind in future. I can't deny that I might not change my mind in future. So I can't deny this. मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता. किस चीज को डिनाई नहीं कर सकता? I might not change in my mind in future. ठीक है, so which means I will change my mind in future. Similarly, no one would argue that in an ideal world such problems would not exist. मतलब ऐसे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, सब जगह पे एग्जिस्ट करते हैं. Yes or no? It would be their home for life if they don't fall behind with rent and are evicted. ठीक है, तो अगर अपना रेंट पे करना ये चुकेंगे नहीं तो ये उनका घर होगा. अगर चुक जाएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा. दिस इज हाउ द आइडिया इज. चलिए ग्रेट, तो ये तो हो गया डबल नेगेटिव. अब हम देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. व्हेन समवन सेज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दिस. ठीक है, व्हेनेवर यू आर गिवन सेंटेंस, ठीक है, और सेंटेंस में इस तरीके से कोई लॉजिकल सेंटेंस आता है. दोस्तों जनरली ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, वो ज्यादातर नॉन फिक्शन पैसेजेस के अंदर आता है. ठीक है, और वहां पे हमें लॉजिक के बारे में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है. ठीक है, व्हेन दे से व्हेनेवर यू ड्रिंक यू शुड नॉट ड्राइव. ठीक है, अब इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या हुआ. ओके, अब इतना सिंपल सेंटेंस तो एग्जाम में आता नहीं है, पर एक लंबे भारी भरकम सेंटेंस में ऐसा बोल दिया और फिर बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर. यस और नो, तो हमें वहां पे लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. व्हेनेवर यू ड्रिंक यू शुड नॉट ड्राइव. ओके, सो दिस इज कॉज. व्हेनेवर यू ड्रिंक दैट इज अ कॉज एंड द इफेक्ट इज यू शुड नॉट ड्राइव. ओके, रिमेंबर दिस. व्हेनेवर यू ड्रिंक यू शुड नॉट ड्राइव. ठीक है दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट की सिचुएशन में, कॉज एंड इफेक्ट की सिचुएशन में हमेशा दो तरीके के आर्ग्यूमेंट एग्री करे जाते हैं. कॉज फॉलोड बाय इफेक्ट. ध्यान से समझना. ठीक है, कॉज फॉलोड बाय इफेक्ट इज एक्सेप्टेबल. अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे. ठीक है, बारिश हुई है इसलिए रास्ते गीले होंगे, वो एक्सेप्टेबल बात है. बारिश हुई है इसलिए रास्ते गीले होंगे, ये एक्सेप्टेबल बात है. पर आई कैन नॉट से कि रास्ते गीले हैं, इफेक्ट हुई है, देयरफॉर बारिश हुई होगी, ये शॉर्ट नहीं बोल सकते. क्यों? पानी लीकेज की वजह से भी रास्ते गीले हो सकते हैं. किसी ने पानी लेकिन से वहां पे फ्लो कर दिया होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. ये इफेक्ट होने के लिए देयर में बी लॉट ऑफ कॉजेस. इफेक्ट होने के लिए देयर में बी लॉट ऑफ कॉजेस. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द कॉज. ठीक है, यू शुड नॉट ड्राइव का वन ऑफ द कॉज इज ड्रिंकिंग. ओके, सो इफ यू ड्राइव यू शुड नॉट ड्रिंक. ओके, सो दोस्तों बात ऐसी है कि कॉज फॉलोड बाय इफेक्ट चलेगा, इफेक्ट फॉलोड बाय कॉज नहीं चलेगा. परंतु नॉट इफेक्ट फॉलोड बाय नॉट कॉज चलेगा. कैसे चलेगा?
भाई रास्ते गीले नहीं है, उसकी वजह से ये पक्का है कि बारिश भी नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। यहां पे इफेक्ट क्या है? यू शुड नॉट ड्राइव, है ना, यू शुड नॉट ड्राइव इज द इफेक्ट। उस इफेक्ट को मैं अगर नेगेटिव करूं, नॉट इफेक्ट करूं, तो इसका नॉट ड्राइव विच मीन्स ड्राइव हो जाएगा। डबल नेगेटिव मतलब माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना। अभी हमने डबल नेगेटिव देखा। डबल नेगेटिव को कैसे यूज करते हैं? दो नेगेटिव हटा दीजिए और वो पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ग्रेट। सो डू नॉट ड्राइव को मैंने ड्राइव कर दिया, डबल नेगेटिव। सो इफ यू ड्राइव यू शुड नॉट ड्रिंक, यू ड्रिंक का नेगेटिव क्या हो गया? नॉट ड्रिंक। चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। फर्स्ट इज रियली एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कांट ड्रिंक एंड ड्राइव एट द सेम टाइम, कि भाई आप ड्रिंक भी कर रहे हो और एक ऐसे ड्राइव भी कर रहे हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। ओनली इफ यू आर नॉट ड्राइविंग मे यू ड्रिंक, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी समय पे, मतलब ओनली इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, जब आप ड्राइव नहीं करते हो तभी आप पी सकते हो। ये सो नो? ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने यहां पे क्या कर दिया? ओनली इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, ओके, यहां पे इन्होंने नॉट कॉज कर दिया, ठीक है, ओके, और यहां पे इफेक्ट लगा दी इन्होंने। दोस्तों वैसे लॉजिकली अगर मैं बोलूं, है ना, लॉजिकली अगर मैं बोलूं कि भैया नॉट कॉज, कि भैया बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से रास्ते गीले नहीं है, यस और नो? ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं? नहीं। अभी तो हमने देखा कि भैया बारिश नहीं हुई है, किसी ने पानी डाला होगा या तो पानी लीकेज हो गया होगा। मतलब नॉट कॉज लीड्स टू नॉट इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर यहां पे सेंटेंस का नेचर देखो, ओनली इफ यू आर नॉट ड्राइविंग मे यू ड्रिंक, ठीक है। यू हैव ऐसे अ काइंड ऑफ राइट, है ना, यू हैव अ राइट टू ड्रिंक। कब? व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग, जब आप ड्राइव नहीं करते हो तभी आप पी सकते हो। यस और नो? ठीक है, इज दैट राइट? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप पीते हो, ठीक है, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। यहां पे कंडीशन आ गया ओनली इफ, यहां पे कंडीशन क्या हो गया? ओनली इफ। यस और नो? क्योंकि व्हेनेवर यू ड्रिंक यू शुड नॉट ड्राइव इज अ काइंड ऑफ एक ऐसे सफिशिएंट कंडीशन, बराबर है। जब आपने उसको ओनली इफ में कन्वर्ट कर दिया तो आपने नेसेसरी भी कर दिया। इज दैट राइट? यस, दिस इज एक्सेप्टेबल। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंस समझ में आ रहा है। ग्रेट। वापस दोस्तों देखिए, आरसी में आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको इन्फर करना है, आपको समझना है कि सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इफ यू पे टैक्सेस यू विल हैव अ क्लियर कॉन्साइंस। कॉज is a paying tax. What is the effect? Having a clear conscience. So what is acceptable thing to us? Acceptable thing to us is cause followed by effect, ठीक है, और not effect followed by not cause, ठीक है। बस ये दो ही ठीक है से अरेंजमेंट पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। There is no possibility for you having a clear conscience, not effect if you not paid your taxes. There is no possibility of having a clear conscience if you have not paid your taxes, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे कैसे यूज करा गया। If you have not paid your taxes, अगर आपने अपने टैक्सेस पे नहीं करे, which means not cause की वजह से उन्होंने बोल दिया not effect। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अभी हमने सीखा था, yes or no? You may have a clear conscience, that is really possible, भले आपने टैक्स पे नहीं करा, yes or no? ठीक है। so this is not right. unless you pay your taxes you will not have a clear conscience, ठीक है। अब आप देखिए unless you pay your taxes, unless is a negative, so क्या बोल दिया? not cause followed by, ठीक है, not effect, ये भी सेम है ना, ठीक है। unless you pay your taxes you will not have a clear conscience, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्लियर कॉन्साइंस होने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, यस और नो? हाँ, वन ऑफ देम इज पेइंग टैक्सेस, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन अप्रोप्रिएट लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ दिस। अगला देखते हैं। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर।
नन बट, दो नेगेटिव हो गया, ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ये पुराने जमाने में, ठीक है, वो जो से मतलब मिडिवल पीरियड के अंदर जो लैंग्वेज यूज होता था, शेक्सपियर के जमाने में यूज होता था, उसका ये मतलब है कि ओनली ब्रेव पीपल विल डिजर्व ब्यूटीफुल वुमन। फेयर का मतलब वही हो गया, सो ऑल दोज हु डिजर्व ब्यूटीफुल वुमन आर द ब्रेव पीपल। सो यहां पे क्या बोला, ओनली ब्रेव पीपल डिजर्व द फेयर, नन बट, ये निकाल दिया, विच मीन्स क्या हुआ, ओनली ब्रेव, क्या मतलब हुआ, ओनली ब्रेव डिजर्व द फेयर, उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या हुआ, ऑल दोज हु डिजर्व ब्यूटीफुल वुमन आर द ब्रेव मैन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओनली मैन डिजर्व्स दैट। यस और नो, इज दिस कंफर्टेबल? इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। ऑल ब्रेव मैन डिजर्व ब्यूटीफुल वुमेन, यस और नो, ब्रेव मैन डिजर्व ब्यूटीफुल वुमन, बिल्कुल सही बात है, यस और नो, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नो वन हु इज नॉट सेंसिटिव इज अ लवर, ओके, नो वन हु इज नॉट सेंसिटिव इज अ लवर, नो वन who is not sensitive, who is sensitive is a lover, someone, that means all sensitive people are lover, no insensitive, no और insensitive का in हटा दीजिए, sensitive person is a lover, all sensitive people are lover, बिल्कुल सही बात है, all lovers are sensitive people, ठीक है, ये बोल सकते हैं भैया all sensitive people are lovers, that does not mean that all lovers are sensitive people, ऐसा नहीं बोल सकते। not all children love chocolates, remember ये लॉजिकल सिलोजिज्म की बात हो गई, not all children, ठीक है, love chocolate, मतलब सभी बच्चों को चॉकलेट पसंद हो वो जरूरी नहीं है, which means some children do not love chocolates, some children do not love chocolate, सही बात है, no children love chocolate, ठीक है, ये बोला not all children love chocolate, which means some children love chocolate, ये गलत बात हो जाएगी, yes or no, I hope it is very clear। Number 6, only a male chauvinist would oppose women reservation bill, भैया women reservation bill oppose कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ male chauvinist people, so all male chauvinist people would oppose women reservation bill, yes, and all those oppose women reservation bill are male chauvinist, बिल्कुल सही बात है, yes or no, I hope you are getting this logical equivalence का idea, okay, चलिए अगला देखते हैं, only if there is a fuel in the car will the car run, ठीक है, only if, ठीक है, okay, there is a fuel in the car will the car run, कार रन करने के लिए क्या कंडीशन है, फ्यूअल, सिर्फ फ्यूअल, ओके, if the car is running there must be fuel in the car, सही बात है, क्योंकि उसके बगैर कार चलेगी नहीं, ओके, दिस इज यू कैन से नेसेसरी कंडीशन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार टू रन इफ देयर इज नो फ्यूअल, बिल्कुल सही बात है, इफ देयर इज नो फ्यूअल इन द कार, कार कैन नॉट रन, बिल्कुल सही बात है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, बिल्कुल सही बात है। चलिए नंबर 8, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम, सभी गुड्स और सर्विसेज को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता, no goods and services provided by ecosystems can be replaced by technology, गलत बात है, technology can never replace all, it can replace some but it cannot replace all, ठीक है, but ऐसा नहीं है कि it cannot replace anyone, no नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है ना सबको, ग्रेट, some goods and services provided by ecosystem cannot be replaced by technology, सही बात है, सही बात है, ठीक है, some चलेगा, moral depravity is a result of excess riches and a wanton life, moral depravity, जो morally deprived लोग होते हैं जिनके अंदर morality होती नहीं है, वो क्यों कहां से आती है, excess of riches and the wanton life, है ना, बहुत सारा मतलब पैसा है और एक wanton life, और चाहिए वाली लाइफ, ठीक है, that means if you have excess riches and lead a wanton life you become morally deprived, ओके, पॉसिबल है कि अगर आप ऐसी लाइफ जीते हो तो आप मॉरली डिप्राइव्ड होगे, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ओके, ठीक है, मॉरल डिप्राविटी इज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस रिचेस एंड वांटेड लाइफ इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बिकमिंग मॉरली डिप्राइव्ड, नो,
दैट इज नॉट नेसेसरी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है. दिस आर द कॉजेज फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस, यस और नो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन कि अगर ये होगा तो ये पक्का होगा, जरूरी नहीं है, पक्का नहीं होगा. यस और नो, आई होप इट इज वेरी क्लियर. एक और देखते हैं. इफ अ नेशन इज टू बी ट्रूली प्रॉस्परस, इट शुड फोकस not only on the creation of wealth but also on its equitable distribution. अगर नेशन को पूरी प्रॉस्परस होना है तो उसको दो चीजों पे ध्यान देना है. yes or no? A nation that focuses on both creation and equitable distribution of wealth would be truly prosperous. okay, चलेगा. A nation is truly prosperous only if, ठीक है, it focuses on both, ठीक है. ओनली इफ नहीं चलेगा. यस और नो, सिर्फ और सिर्फ यहां पे फोकस करेगा तो नहीं चलेगा. इट शुड फोकस ऑन दिस बट ओनली इफ नहीं, ठीक है. ओनली कंडीशन नहीं चलेगा. ओनली दिस वन इज अ लॉजिकल, यू कैन से कनेक्शन. सो दोस्तों, इफ, ओनली इफ, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. आई एम श्योर यू शुड बी इन अ पोजीशन टू लर्न दिस. आज आप होमवर्क में घर पे से विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेसेसरी कंडीशन एंड अ सफिशिएंट कंडीशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड अ सफिशिएंट कंडीशन एंड अननेसेसरी, व्हिच मींस आपके पास तीन कैटेगरी है. नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है. हैविंग ऑक्सीजन फॉर इन्फ्लेमेशन is not a sufficient condition, but oxygen is required to, you can say, to inflame something. So oxygen is a necessary condition. उसके बगैर काम नहीं होगा. Yes or no? But it is not sufficient. ठीक है. ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी और चीजें चाहिए तो जाके कहीं पे आग लगेगी. हवा में ऑक्सीजन है, अपने आप आग नहीं लगेगी. You need ignition. You need inflammable material. हाँ, पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. Yes or no? So that is of the necessary conditions. तो ये सब चीजों को यहाँ पे अप्लाई किया था हमने. वेरी गुड. चलिए देखते हैं. इन्फरेंस का मतलब क्या होता है. इन्फरेंस इज लॉजिकली डिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, और वो आपको पैराग्राफ में से आप कितना स्ट्रॉन्ग इन्फरेंस दे पाते हो, कितना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन दे सकते हो, दैट इज इन्फरेंस. व्हाइल एजम्पशन इज अनस्टेटेड प्रीमाइस. एजम्पशन इज अनस्टेटेड प्रीमाइस. सो दोस्तों, आपने लॉजिकल रीजनिंग की क्लास अटेंड करी थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में क्या कनेक्शन है. यस और नो, प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है. प्रीमाइस हेल्प्स टू रीच टू कंक्लूजन. सो दैट मींस ऐसी कोई स्टेटमेंट जो अनस्टेटेड है विच हेल्प्स टू रीच टू अ कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन. व्हाइल प्रीमाइसिस के बेसिस के ऊपर अगर हम कंक्लूजन देते हैं तो उसको इन्फरेंस दिया जाएगा, इन्फरेंस बोला जाएगा. यस और नो, जनरली इन्फरेंस, ठीक है, इज, यू कैन से, डिराइव्ड. हाउ स्ट्रांगली वी डिराइव आउट ऑफ, यू कैन से, अ पर्टिकुलर पैराग्राफ इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू. दोस्तों, एग्जाम में जब आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फरेंस, आइडियली इन्फरेंस पैराग्राफ में लिखा नहीं होगा, आइडियली, ठीक है, पर बहुत बार ये लोग आपको पैराग्राफ में जो ऑथर ने इन्फरेंस डिराइव किया है वो पूछा है और आपको बोला है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा इन्फरेंस है. तो भैया आपको मतलब वहां पे लिखा हुआ होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. सिमिलरली एजम्पशन इज ऑल्सो अनस्टेटेड, बट ऑथर ने उसको अनस्टेटेड बात को इनडायरेक्टली स्टेट करके बोला हो, ठीक है, और उसके ऊपर से उसने कुछ कंक्लूजन बोला हो, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. ओके, ठीक है. फैक्ट, ओपिनियन और इन्फरेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है. यू कैन वेरी वेल रीड दिस एंड गेट एन आइडिया. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. दोस्तों, लॉजिक plays a very important role, ठीक है. Reasoning is playing very important role in your RC. I'm sure with the second session you are able to understand this. Okay, thank you very much for watching this. Do not miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, with this logical part, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाएंगे. दोस्तों, जब आप लॉजिकली सोचना चालू करेंगे, ठीक है, आप एक एक सेंटेंस के ऊपर लॉजिक जो यूज हुआ है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उस सेंटेंस के आगे की बात,
उसका आगे का सेंटेंस उसके पीछे के सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर आप उसका इंटरप्रिटेशन सही कर पाएंगे। मोर इंपॉर्टेंटली ऑप्शन में कभी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी यूज करिए, आप आइडेंटिफाई करके उसको डिस्कार्ड कर पाएंगे। यह फायदा आपको लॉजिक करने से होता है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।